Today we will discuss on another test, mechanical test, that is compression test. Okay, and so we will discuss on today about the compression test and uh, some compression properties. Okay, so ये जो from the terminology से क्या पता चल रहा है? तो compression means you are applying the compressive load. Okay. In the tensile test, we are applying the tensile load. Means we are just pulling pulling out the material. Means material को खींच रहा हूँ. यहाँ material को क्या कर रहा हूँ? Compress कर रहा हूँ. Okay. Means compressive एक load दे रहा हूँ material को. ठीक है. So in compression test, we are applying a compressive force. Understand? So in compression test, so in the compression test, we are applied a compressive load. So suppose this is a cylindrical sample. Okay, in the cylindrical sample, the initial height is 8 knot. Means पहले cylindrical sample का जो height था, वो this height is 8 knot initially, and you are and the cross sectional area is a knot. So this cross sectional area means the initially diameter of the cylindrical bar if the material is in cylindrical type. So it is the diameter, initial diameter. Suppose the initial diameter is d naught. Okay. Now, if we apply load, compressive load. So compressive load means you are applying a load in this direction. Okay, or in this direction. Okay. So if means if the material is fixed here, means अगर material या fixed है, means gripping किया है इसी portion और grip किया हूँ, and upper portion भी grip है, ठीक है. But this upper portion, the upper gripper is moving in downward, ये downward move कर रहा है. But lower grip जो lower grip है, this lower grip is fixed. Okay, this lower grip suppose is fixed, and upper grip is moving in downward move हो रहा है. ओके, तो दिस डाउनवर्ड मूव हो रहा है. तो डाउनवर्ड मूव हो रहा है मीन्स एक कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है. तो जैसे कंप्रेसिव लोड अप्लाई होगा तो क्या होगा? मटेरियल का जो इनिशियल हाइट था, दिस हाइट विल रिड्यूस. तो पहले हाइट था एच नॉट, एंड एच नॉट से रिड्यूस होकर एच हुआ. तो दैट मीन्स एच नॉट पहले ज़्यादा था, ग्रेटर देन एच. ओके, एंड साइमल्टेनियसली क्या होगा? दिस जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस सेक्शनल विल इंक्रीज. मीन्स जो डायमीटर था मटेरियल का, दिस डायमीटर विल इंक्रीज. सपोज इंक्रीज होगा डी हुआ, तो दिस डी ऑब्वियसली ग्रेटर देन डी नॉट. जो इनिशियल डायमीटर था वहां से अभी ज्यादा हुआ, and cross sectional area also increase. That means dA greater than A naught. ठीक है. So if you are applying a compressive load, then material will compress. Okay. Now and remaining the same means in the tensile test. टेंसाइल टेस्ट में क्या हो रहा था? एट मीन्स हाइट, मटेरियल का जो हाइट है वो हाइट, दिस हाइट ऑफ द मटेरियल और लेंथ ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस इन टेंसाइल टेस्ट. टेंसाइल टेस्ट में लेंथ इंक्रीज हो रहा था, बट कंप्रेसिव टेस्ट में जो लेंथ है और हाइट है, दिस हाइट इज डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. इसके अलावा जो डिफॉर्मेशन का जो बिहेवियर, जो डिफॉर्मेशन जैसे डिफॉर्मेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स इन टेंसाइल में डिफॉर्मेशन क्यों हो रहा है? दिस डिफॉर्मेशन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन,
स्लीप ऑफ वन प्लेन ओवर वन प्लेन, ठीक है। तो कॉम्प्रेसिव टेस्ट में भी सेम है, सेम मीन्स कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन ऑल्सो। यहाँ पर भी डिसलोकेशन मूवमेंट के वजह ही हो रहा है। इवन दिस compressive deformation हो रहा है sleep by the mechanism of sleeping, means sleep of one plane over another plane, ठीक है। तो this is the compression Yes, test sir. setup, means similar, this compression test setup is similar to the tensile test setup। वो जो मैंने टेंसाइल टेस्ट के टाइम जो इंस्ट्रॉन और जो यूनिवर्सल टेस्टिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन मैंने देख ये किया था, शो किया था। तो ए कंप्रेशन टेस्ट कैन ऑल्सो बी परफॉर्म बाय सेम यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्ट मशीन। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इज द मटेरियल, ये जो स्पेसिमेन है, दिस इज कॉल्ड दिस मटेरियल इज कॉल्ड एक्चुअली मींस दिस इज एक्चुअली टेस्ट स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन है ये। ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेस्ट का स्पेसिमेन का जो जियोमेट्री है, दिस जियोमेट्री एक्चुअली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ टेंसाइल टेस्ट। इन टेंसाइल टेस्ट में स्पेसिमेन का जियोमेट्री किस टाइप का था, ऐसे एक रिड्यूस सेक्शन था, दिस इज एक्चुअली रिड्यूस सेक्शन। ओके, एंड ये जो पोर्शन था, दिस पोर्शन एक्चुअली द गेज पोर्शन, suppose this was the gauge portion, ठीक है। तो बोथ साइड ऐसे गेज पोर्शन था। ओके, एंड यह एक कार्वेचर था, दिस इज द कार्वेचर। इन टेंसाइल टेस्ट में इसी टाइप का सिंपल स्पेसिमेन जियोमेट्री था, इसी टाइप का है ना। एक एक कार्वेचर था इसी पोर्शन पर, एंड दिस एक्चुअली दिस पोर्शन is called the gauge length, GL, gauge length। Okay, so this is for tensile test, tensile test। So in case of tensile test, the simple specimen geometry was like this। और in case of compression test में इसी टाइप का कोई मीन्स जो रिड्यूस सेक्शन है, जो कार्वेचर पोर्शन है, ये कार्वेचर पोर्शन नहीं रहेगा, जस्ट ए सिलेंड्रिकल टाइप, मीन्स यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल सिलेंड्रिकल टाइप। दिस टाइप ऑफ स्पेसिमेन जियोमेट्री इज यूज्ड इन केस ऑफ कंप्रेशन टेस्ट। ओके, क्यों ना इसमें अगर मैं इसी टाइप का जियोमेट्री यूज करूंगा ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट, तो इसी पर क्या होगा ना, मोर रेसिडुअल स्ट्रेस विल जनरेट, ठीक है। तो ये जो रिड्यूस सेक्शन है, रिड्यूस सेक्शन पर ज़्यादा रेसिडुअल स्ट्रेस जनरेट होगा, एंड देयर इज चांसेस ऑफ बकलिंग, या बकलिंग होने का चांस रहेगा इसी पोर्शन पर। तो इसलिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला, इसी टाइप का क्रॉस सेक्शन वाला स्पेसिमेन यूज करते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ यूनिफॉर्म टाइप का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन टाइप का स्पेसिमेन है। ओके, एंड similarly upper part is gripped by jaw। ये जो अपर पार्ट है मटेरियल का, दिस पार्ट इज ग्रिप्ड बाय ए अपर jaw, दिस इज एक्चुअली अपर jaw। अपर प्लाट यह दिस इज here called the upper platen। The upper platen and upper jaw are same, and in the lower part also gripped by a lower jaw, ठीक है। and this upper jaw will move, ये जो अपर जो जॉ है, दिस अपर जॉ विल मूव इन बोथ डायरेक्शन, मीन्स इन डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, बोथ डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो इफ दिस जॉ विल मूव इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, देन व्हाट हैपन, द कंप्रेसिव फोर्स विल जनरेट इन दिस स्पेसिमेन, टेस्ट स्पेसिमेन। ओके,
and the movement of this jaw is can be controlled. So मैंने टेंसाइल के टेस्ट के टाइम बताया था. So actually different control mode are there. One is load control mode, so you can control the load control mode. uh, this is one type of control mode. Second type of control mode is extensometer extension control mode. Okay, extension control mode. And third type is strain control mode. Strain control mode, ST. Okay, so this is the movement of this upper moving crosset means this part. This is actually called crosset. So this crosset can be moved and can be controlled by load control mode means you can control the load, even extension means how much extension per second per time, and strain control mode means how much percentage per time. Okay, so it control mode is possible, and by controlling this means you can control the compression test. ठीक है. तो अगर मैं डाउनवर्ड फोर्स ये करूंगा, मूवमेंट करूंगा, तो इसमें कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा. ठीक है. तो कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होने के बाद क्या होगा, मटेरियल का जो हाइट है, हाइट रिड्यूस हो जाएगा, बट डायमीटर विल इंक्रीज. इससे डायमीटर बढ़ेगा. ओके. So in this case also, but so here the stress, जो stress अभी apply हो रहा है, so this stress is nothing but a similar to the tensile test also. So force divided by original area. ठीक है. So this stress uh, compressive stress is equal to F divided by A naught. Here minus sign, why is minus? माइनस साइन क्यों? क्योंकि जो फोर्स अप्लाई होगा, या अगर यहाँ लोड सेल में अगर मैंने यहाँ लोड सेल कनेक्ट करूंगा, तो लोड सेल में क्या सेंस करेंगे? लोड सेल विल सेंस ओनली द, इन दिस केस लोड सेल विल सेंस द नेगेटिव वैल्यू. ठीक है. अब टेंसाइल टेस्ट में जो मैंने पहले बताया था, टेंसाइल टेस्ट में यहाँ एक लोड सेल रहता है. लोड सेल के साथ एक जो पोर्शन है ग्रिप, तो ये ग्रिप रहता है, ग्रिप फॉर होल्डिंग द स्पेसिमेन. देन ये स्पेसिमेन रहता है. देन नीचे एक सिमिलरली ग्रिप, एक ग्रिपिंग अरेंजमेंट रहता है, ग्रिपिंग फॉर द स्पेसिमेन. देन एक प्रोसेड रहता है, दिस प्रोसेड एक्चुअली मूव. ठीक है. तो अगर ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, जस्ट जस्ट मिनट, आई एम कमिंग विद इन 5 minutes. हेलो. 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 Okay.
So ओके, मेरा आवाज आ रही है ना? Yes, हेलो। yes sir, yes yes, sir, आ रही है। ओके। वही चीज तो ओके, सो ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, तो मैंने बता रहा था जो ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, दिस इज एक्चुअली लोड सेल। ये लोड सेल रहता है। लोड सेल के बाद दिस इज एक्चुअली फॉर ग्रिपिंग द specimen. So this is actually gripping system, and this gripping here. So there are in both end, there are obviously in this end also should be a gripping arrangement. Okay, and then this is actually the lower part, and this part will move. Okay, ऐसे move होगा. Okay, so this is actually cross head. Cross head. So this cross head will move in case of tensile test. तो अगर क्रॉसहेड इसी डायरेक्शन पर मूव होगा, देन ए टेंसाइल स्ट्रेस विल जनरेट ऑन दिस स्पेसिमेन। टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, और होगा कि नहीं? इफ वी मूव द क्रॉसहेड in downwards, then a tensile stress will generate on this specimen. Tensile stress or tensile force will generate, and this tensile stress will sense by this load cell. Okay, तो ये जो लोड सेल टेंसाइल स्ट्रेस सेंस कर रहे हैं, दिस वैल्यू मीन्स जो वैल्यू सेंस कर रहे हैं, दिस वैल्यू इज इन पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू। ओके, इन सपोज 5 किलोन्यूटन सेंस किया, ठीक है। एक्चुअली लोड सेल विल सेंस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, and this electrical signal will transfer into the value. Okay, तो तो ये टेंसाइल टेस्ट के टाइम पॉजिटिव वैल्यू सेंस कर रहा है। अगर मैंने ये लोड का डायरेक्शन ऑपोजिट करूंगा, मीन्स ये जो क्रोशेड है, दिस क्रोशेड इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ क्रोशेड मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इसी डायरेक्शन में क्रोशेड को मूव करूंगा, तो मटेरियल के ऊपर किस टाइप का स्ट्रेस जनरेट होगा? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि मटेरियल कॉम्प्रेस्ड हो रहा है कि नहीं? yes, sir, हो रहा है। yes, sir, अगर मैंने upward direction, if I move this process in upward direction, then this material, this specimen will means a compressive stress will generate on this specimen, ठीक है। तो ये जो compressive stress generate हो रहा है, तो ये जो compressive stress कौन सेंस करेगा? दिस लोड सेल एक्चुअली लोड सेंस करता है, जी कितना लोड मटेरियल को ऊपर आ रही है। ये मटेरियल का जो मटेरियल ऊपर जो लोड आ रही है, वो तो मटेरियल खुद नहीं देंगे। मटेरियल कैसे लोड बताएंगे जो इतना लोड आ रहा है? कोई एक लोड सेल रहेगा ना, जो वो लोड सेल बताएंगे जो इतना लोड आ रहा है मटेरियल के ऊपर, नहीं है ना? yes, तो ये लोड सेल बताएंगे जो वह मटेरियल के ऊपर इतना yes लोड आ सही रहा है। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन ये डायरेक्शन अपोजिट हुआ, तो लोड सेल में क्या रहता है? लोड सेल में एक स्ट्रेन गेज रहता है, स्ट्रेन गेज, ठीक है। स्ट्रेन गेज टाइप की जो स्ट्रेन गेज टाइप एक्चुअली ये है। तो स्ट्रेन गेज मीन्स जस्ट ऐसे कुछ ये है जो जिसका मूवमेंट पे पता चलेगा कितना लोड हो रहा है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। जस्ट जो स्ट्रेन गेज का जो चेंज होगा, मीन्स जो लोड जो बताएंगे, लोड कैसे बताएंगे? जो चेंज हो रहा है, मीन्स पहले जो पोजीशन था स्ट्रेन गेज का, सपोज ऐसे पोजीशन था, तो उसी टाइम लोड 0 था, लोड कुछ नहीं हुआ। अगर ये स्ट्रेन गेज का थोड़ा मूव हुआ, तो स्ट्रेन गेज चेंज हो रहा है। दिस चेंज इज डेल्टा। डेल्टा मीन्स स्ट्रेन गेज का चेंज हो रहा है। डेल्टा डेल्टा एस स्ट्रेन गेज का चेंज हो रहा है।
तो ड्यूरिंग जो टेंसाइल टेस्ट, ये जो डेल्टा एस चेंज हो रहा है स्ट्रेन गेज का, इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट ए वैल्यू पॉजिटिव है, मीन्स स्ट्रेन गेज का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बढ़ रहा है, मीन्स डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए उस टाइम क्या पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा ड्यूरिंग टेंसाइल। बट ड्यूरिंग कंप्रेशन ये जो डेल्टा एस है, मीन डेल्टा जो स्ट्रेन गेज का जो चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव में होगा कि नहीं। पहले इसी सपोज दोनों स्ट्रेन गेज का इसी पोजीशन में था, अगर ए कंप्रेस किया तो ए जो स्ट्रेन गेज का जो चेंज हो रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। देन स्ट्रेन गेज का चेंज होगा नेगेटिव वैल्यू में, एंड दिस नेगेटिव सिग्नल विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव लोड। ओके, so that's why in compressive test the value are coming in negative। ठीक है, क्यों नेगेटिव में आ रहा है पता चला, अंडरस्टैंड और नॉट। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. yes, so that's why the stress in compression test is similar to the tensile test, means just applied force divided by cross sectional area, but in this case the value is in negative, so minus sign here there, because here the negative force are sensed by the load cell। ठीक है, लोड सेल जो है वो नेगेटिव वैल्यू सेंस कर रहा है, इसलिए नेगेटिव में रिजल्ट मिलेगा। बट नेगेटिव में रिजल्ट मिल रहा है, बट वैल्यू जो है वो उतना ही वैल्यू लग रहा है, मीन्स उतना ही वैल्यू देना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही लोड देना पड़ेगा, उतना ही स्ट्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज नथिंग बट ए जो फाइनल हाइट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हाइट। So this is the final height. So after Yes, sir. compression, the height is h. Yes, our initial height था h naught. So this difference means कितना height मेरा change हुआ। तो this delta h, and to get in percentage value, you have to divide it by original value. So delta h divided by h naught. Okay, and you just multiply by this value by this with 100, then you get the percentage value। okay, percentage में आएगा ना। तो this is the engineering strain in case of compression test। so just look here, so a value किस में आएगा, so this value will be in positive or negative। जो स्ट्रेन वैल्यू है वो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। Yes, sir. और जब मतलब इंट्रोड्यूस्ड होगी कंप्रेशन के द्वारा तो वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। यस, क्यों, क्योंकि ये जो फाइनल हाइट है, दिस फाइनल हाइट इज लेस कंपेयर टू द इनिशियल हाइट घट रहा है ना। तो ये जो फाइनल हाइट है मीन्स ए इज एक्चुअली, तो एक्चुअली ए इज लेस देन ए इज नॉट। ओरिजिनल हाइट से जो फाइनल हाइट हुआ, दिस फाइनल हाइट इज लेस देन द एच नॉट। So that's why this value, engineering strain value, is also in negative. This value also is in negative value। okay, so stress and strain value, तो दोनों वैल्यू मिल रहा है मुझे, दोनों वैल्यू आर इन नेगेटिव। ठीक है ना। तो that's why the stress strain curve का किस टाइप का नेचर होगा। So suppose this is the zero position, so in this direction strain E, engineering strain, and along this direction is a stress S।
So in this direction actually positive value, in this direction negative value, in this direction is positive value, in this direction is negative value. So जो टेंसाइल टेस्ट हो मतलब कॉम्प्रेशन टेस्ट में इसी कोऑर्डिनेट में ए से आएगा, आएगा कि नहीं, इस टाइप का नेचर होगा, ठीक है, इसी टाइप का होगा। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली इसी टाइप से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि ग्राफ में ऑलवेज पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में करते हैं, तो इसलिए जस्ट वी आर टेकिंग द वैल्यूज मीन्स in compression test we will in this direction जो x direction y axis, along the y axis we are taking the stress value and write here in negative, okay, and along the strain axis we will write strain and take the only negative value. So this curve will again like द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो टेंसाइल टेस्ट के टाइम मिला था। जस्ट मैंने ए नेगेटिव वैल्यू इसी डायरेक्शन में लिया वाई एक्सिस बराबर एंड स्ट्रेन वैल्यू आल्सो विल टेक इन दिस डायरेक्शन। तो एक कर्व इसी टाइप का मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। सो the stress strain curve in compression test will get like this. So this is the similar to the tensile test, but just see here the difference. इसमें भी difference है, difference कहाँ है, तो just see it carefully. So if I take the value means take the absolute value, actually here we are taking the absolute value mean mod value, okay. So mod value of this stress means जो compressive के टाइम जो नेगेटिव में वैल्यू मिल गया था, ठीक है, this value, this stress value. So if I take the mod value means mod of sigma means engineering sigma means engineering stress, then mod of sigma means just absolute value, okay. We are not considering the negative, just जितना वैल्यू आएगा, सपोज 250, सपोज इस कैलकुलेशन के बाद -250 हुआ, ठीक है, 250 MPa, ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस, तो -250 हुआ, तो वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस 250 वैल्यू। मॉड मीन्स ऐसे होता है ना, तो जस्ट if you plot the mod value of stress and strain for both, so just if you plotting the mod strain value and mod stress value, mod का मीनिंग पता है कि नहीं, हेलो, मोड का सर, में जो इसका जो वैल्यू मिल रहा है स्ट्रेस का वैल्यू, कंप्रेशन टेस्ट के टाइम कंप्रेशन का जो वैल्यू आएगा वो किस में पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव, सर मोड के अंदर से तो पॉजिटिव आएगा। हाँ, मॉड अगर मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही होगा। यस सर, यस। सिमिलरली स्ट्रेन अगर मैं मॉड लूंगा तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव मीन्स इसी कोऑर्डिनेट में रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, दिस along this axis is x axis, along this axis is y axis। तो अगर मैं मॉड लूंगा तो टेंसाइल ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट के टाइम जो रिजल्ट मिलेगा दिस वैल्यू विल बी इन दिस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा ना सारे वैल्यू पॉजिटिव, हाँ, along this in this direction also positive, so all this value will be in this coordinate, यस, ठीक है। तो
ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट अगर मैं कंप्रेशन टेस्ट करूंगा तो कंप्रेशन टेस्ट का जो कार मिलेगा इसी टाइप, मतलब ब्लू कलर में जो कार है अभी, ठीक है। बट टेंसाइल टेस्ट जो अगर मैं सेम स्पेसिमेन को टेंसाइल टेस्ट करूंगा तो देन वी विल गेट द कार्व। किस टाइप का कार्व मिलेगा, मैंने ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट में बताया था, किस टाइप का मिलेगा, ये जो प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक सेम आएगा, इसी तक सेम आएगा। देन ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं, टेंसाइल का टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस सिस्टम का कर्व दिस सर। इज फॉर टेंसाइल। यस सर। जो अगर मैं टेंसाइल टेस्ट करूंगा तो इसी टाइप का कार्व आएगा ना। यस सर। समझ रहे हो कि नहीं, टेंसाइल टेस्ट के टाइम तो मैंने बताया था ना, ए दिस इज फॉर टेंसाइल टेस्ट, ये तो दिस कार्व इज फॉर टेंसाइल टेस्ट। कंप्रेशन अगर मैं कंप्रेशन करूंगा तो इसी टाइप का कार्व मिलेगा, दिस इज फॉर कंप्रेशन टेस्ट, यूएमपी। ओके, कंप्रेशन टेस्ट, दिस इज फॉर कंप्रेशन टेस्ट। तो यहाँ एक डिफरेंस मिल रहा है कि नहीं, दोनों कार्व का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है, डिफरेंट है सर। डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, कंप्रेसिव में क्या हो रहा है सर, इसमें डाउनवर्ड ये, अपवर्ड हो रहा है सर। कंप्रेसिव में अपवर्ड हो रहा है, टेंसाइल में डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड हो रहा है। गुड। तो कहाँ से डाउनवर्ड हो रहा है, देखो यहाँ पे भी अपवर्ड हो रहा है, अभी तक इतना तक टेंसाइल में इतना तक अपवर्ड हुआ, ठीक है, इतना तक ये अपवर्ड हुआ कि नहीं, इतना तक। यस सर। बस उसके बाद डाउनवर्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी पॉइंट के बाद जो टेंसाइल टेस्ट है, तो टेंसाइल टेस्ट का कार्व डाउनवर्ड हो रहे हैं। बट कॉम्प्रेसिव टेस्ट का जो नेचर है, कॉम्प्रेसिव टेस्ट का कार्व का जो नेचर है, उसी के बाद भी वो अपवर्ड ही है। तो ये दोनों जो डिफरेंस है ये क्यों हो रहे हैं, टेंसाइल टेस्ट में क्यों डाउन हो रहा है और कॉम्प्रेसिव टेस्ट में क्यों अपवर्ड हो रहा है, एनी रीजन। क्योंकि टेंसाइल टेस्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया रिडक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज इसी पोर्शन पर मटेरियल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1, ठीक है, इसी पोर्शन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर घट गया, घटेगा कि नहीं ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, इसी पर मीन्स इसी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिर घटेगा, A3 घट गया, इसी पर क्रॉस सेक्शनल एरिया और भी ज़्यादा घटेगा कि नहीं। टेंसाइल टेस्ट में मटेरियल तो इलोंगेट हो रहा है, खींच रहा हूँ मटेरियल को, तो मटेरियल को खींचोगे तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया डायमीटर will reduce and up to UTS तक क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्मली घटेगा कि नहीं। up to suppose this is the 0.5, तो up to इसी तक क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता जाएगा यूनिफॉर्मली। और आफ्टर यूटीएस क्या होगा, मटेरियल विल डिफॉर्म ओनली एट लोकलाइज पोर्शन। लोकलाइज पोर्शन मीन जो नेकिंग है, नेकिंग पोर्शन, आफ्टर यूटीएस नेकिंग फॉर्मेशन हो जाता है मटेरियल को, तो ओनली ये जो नेकिंग पार्ट है, उसी जो नेकिंग पार्ट है, उसी नेकिंग
पोर्शन पर ही, इसी पोर्शन पर ही मटेरियल का डिफॉर्मेशन होगा। मटेरियल विल डिफॉर्म ओनली इन दिस पोर्शन। ठीक है, मीन्स मटेरियल का क्रॉस सेक्शन और ज्यादा घटेगा। ठीक है, मीन्स A6 यहाँ अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूंगा इसी पर, मीन्स जस्ट नेकिंग पर, तो मटेरियल का क्रॉस सेक्शन और भी घटेगा। ठीक है, मीन्स अगर मैं सिक्वेंशियली कंसीडर करूंगा ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट, तो क्या हो रहा है, फर्स्ट जो क्रॉस सेक्शन एरिया था ज़्यादा था, देन क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया 2.2 पर, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया और भी ज़्यादा घटा एट 0.3, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया और भी ज़्यादा घटा अप टू यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन तक क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्मली घट रहा है। बट यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन के बाद भी क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है। कहाँ घट रहा है? एट नेकिंग रीजन। तो एट नेकिंग रीजन क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें ज़्यादा घट रहा है। ओके, बट इन कंप्रेशन टेस्ट, अगर मैं कंप्रेशन टेस्ट का कंसीडर करूंगा, तो सपोज A.1, सपोज इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया C1 है, यहाँ पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया C2 है, इसी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया C3 है, इसी पॉइंट पर क्रॉस सेक्शनल एरिया C4 है। ओके, इसी पर C5 है। ओके, देन इसी पर C6 है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा ना बढ़ेगा? दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विल डिक्रीज और इंक्रीज? मीन्स C1 will be greater than or less than to C2? ये greater than और less than सिंबल होगा यहाँ? Anyone? हेलो? Yes, sir. C1 will be greater than or less than to C2? मीन्स C1 मीन्स पता चला, C1 ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंप्रेशन टेस्ट, C2 का ज्यादा होगा ना कम होगा कंपेयर टू C1? ज्यादा हो गया सर। ज्यादा होगा, मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है। C1 ग्रेटर देन C2 ग्रेटर देन C3 ग्रेटर देन C4 ग्रेटर देन C5। ठीक है, ग्रेटर देन C6। जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, मीन्स क्या हो रहा है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज स्ट्रेस बढ़ रहा है सर। यस, मीन्स सिग्मा इक्वल टू सिग्मा F डिवाइडेड बाय एरिया एरिया। ठीक है, यस सर। बट तो यह मीन्स मटेरियल का क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो रहा है मीन्स ज्यादा लोड, ज्यादा फोर्स, ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो इसलिए जो कंप्रेशन टेस्ट का जो कर्व का नेचर है, इट इज इन अपवर्ड, बट मीन्स आफ्टर यूटीएस the nature of this compression stress strain curve is in upward। ठीक है, ये कंप्रेशन टेस्ट का जो नेचर है अपवर्ड है, और यहाँ टेंसाइल टेस्ट का नेचर डाउनवर्ड है हो रहा है, क्योंकि इसमें लोकलाइज डिफॉर्मेशन हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया घट रहा है एट लोकलाइज पोर्शन। ठीक है, यहाँ मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा फोर्स जरूरत है।
Okay. Now tensile test versus compression test. So although differences exist between engineering stress strain curve in tension and compression, the two stress strain relationships are nearly identical. Since tensile test results are more common, flow curve value K and N from tensile test data can be applied to compression operation. Hence, as a tensile test and compression test, both are identical. So, जो K and N, what is K and N? I have told in the previous class what is K and N. K क्या है? So in Holomon equation, we know that sigma is equal to K into epsilon C whole to the power N. है ना? So this K. So K is called क्या बताओ कुछ? Anyone? So this K is called strength coefficient and N is strain hardening exponent. ठीक है, मटेरियल को जैसे स्ट्रेन करूंगा द मटेरियल विल गेट हार्डन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग. in the previous class I have told about the strain hardening. स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग कैसे मेजर करती है, and the Holloman relationship also. This is called the Holloman relationship. Okay. So in both cases, means in compression test and tensile test, these value K and N value can be calculated and can are both these value are same. Okay. While using tensile K and N data for compression, ignoring necking. So means during using the K and N data, so in case of compression, we ignore the necking portion, because in case of compression test there is no necking. मटेरियल को नेक नहीं होगा क्योंकि मटेरियल स्ट्रेच नहीं हो रहा है. ठीक है, मटेरियल स्ट्रेच हो रहा है ड्यूरिंग कंप्रेशन टेस्ट, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, मटेरियल कंप्रेस्ड हो रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है. So there is no possibility of necking in case of compression test. Okay, and this and which is a phenomenon peculiar to strain induced by tensile test. Now testing of brittle material. So compression testing of brittle material. So mainly the compression test is yes. Yes, sir. Next, like. Yes, मुझे पता है, एक मिनट, just a minute. So this is just a introductory part of compression test. The next class is I think Wednesday. So get some idea about the compression test and tensile test. I will share all the PPT. Okay. And in the previous class, I have also given one homework. So this homework will get from the PPT. I will share all the PPT. Complete this homework and get some idea about tensile test and compression test. The next part of the compression test we will discuss in the next class. Okay. Okay. Sir. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you.